مان نے بہت ناز و نام میں پرورش پائی۔ سبھی والدین کی طرح نانا نانی بھی یہی چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی ایسے گھر بیاہی جائے جہاں وہ سکھی رہے۔ مان بہت خوبصورت تھی اور خوبصیرت بھی، سونے پر سہاگا کے وہ ایک دولت مند باپ کی بیٹی تھی۔ ایسی لڑکیوں کے لیے بھلا رشتوں کی کیا کمی، مگر نانا سب میں عیب نکال کر انہیں رد کر دیتے تھے۔ پھر اپنی چاند سی بیٹی کے لیے نانا جان کی نگاہ انتخاب شرافت علی پر پڑی، جو ان کے دوست کے بیٹے تھے۔ وہ پولیس میں بطور انسپکٹر کام سر انجام دے رہے تھے، شکل و صورت میں بھی اچھے تھے اور کوئی لمبا چوڑا خاندان بھی نہیں تھا۔ والدین انتقال کر چکے تھے، وہ اکیلے رہتے تھے۔ نانا جان کو بھی ایسا ہی داماد چاہیے تھا جو بیٹی کے ساتھ انہی کے پاس رہے۔ یوں کم سنی میں امی کی شادی شرافت علی یعنی میرے ابو سے ہو گئی۔ شروع دنوں میں وہ بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے۔ نانا کی منشا کے عین مطابق وہ اپنا مکان کرائے پر دے کر خود نانا جان کے ساتھ گھر داماد بن کر رہنے لگے۔ امی خوش تھیں، ابو ان کا بہت خیال رکھتے تھے، دونوں میں بہت پیار اور محبت تھا۔ وہ دن بڑے ہی اچھے تھے، مگر یہ وقت پلک جھپکتے گزر گیا۔ نانا جان نے اپنی جائیداد کا مختار داماد کو بنا دیا۔ اتنی دولت ہاتھ آئی تو اس ثروت نے رنگ بھی دکھانا شروع کر دیا۔ اب ابو ڈیوٹی کے بہانے 2 اور کبھی 3-4 دن بھی گھر سے باہر رہتے۔ نانا جان کو تو اپنے داماد پر بے حد اعتماد تھا، تبھی انہوں نے آدھی جائیداد ان کے نام کر دی اور آدھی بیٹی کے نام کر دی۔ امی کی بدقسمتی کے نانا اور نانی 1 سال کے اندر اندر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب ڈر کس بات کا تھا، ابو کو تو کھلی چھٹی مل گئی۔ وہ اب روز ہی دیر سے گھر آنے لگے۔ امی پوچھتی تو بہانہ بناتے۔ جب امی کو ادھر ادھر سے کچھ سنگن ہوئی اور انہوں نے ظاہر کر دیا کہ وہ ان کی سرگرمیوں سے واقف ہو گئی ہیں، تو میرے والد گالی گلوچ پر اتر آئے۔ اصل میں وہ دوسری عورت کے دام میں آ چکے تھے اور اپنی دولت اس پر بے دریغ لٹا رہے تھے۔ امی جلدی کرتی رہتی تھیں۔ ابو نے اپنا مکان بیچ کر اس رقم سے اپنی محبوبہ کے لیے نیا گھر بنوا لیا تھا۔ امی نے احتجاج کیا تو کہا، یہ گھر تیرے باپ کا دیا ہوا نہیں ہے، میں نے بنوایا ہے۔ امی کو وہ اب اہمیت نہ دیتے، بلکہ ان کی ذات میں بہت عیب گنواتے تھے۔ ایسے میں میری امی سوائے صبر کے کیا کر سکتی تھی، جبکہ شوہر کی آنکھوں پر کسی اور عورت کے عشق کی پٹی بندھ گئی تھی۔ وہ اب اس عورت کو گھر بھی لانے لگے جس کے ساتھ ان کی دوستی چل رہی تھی۔ امی سے کہتے کہ میری مہمان کے لیے کھانا بناؤ، وہ اپنے شوہر کی بدسلوکی کے خوف سے اس عورت کی مہمانداری پر مجبور ہو جاتی۔ انہی برے دنوں میں میں بدنصیب اس دنیا میں آ گئی۔ جس مرد کو اپنے عیش سے فرصت نہ ہو، اس کو بیٹی کی آمد کی کیا خوشی۔ والد کو میری پیدائش سخت ناگوار گزری۔ بیٹے کی چاہ میں تھے کہ جھولی میں بیٹی آ گئی۔ وہ تو ایسے ہو گئے کہ جیسے کسی کو سانپ سونگھ جاتا ہے۔ خدا کی کرنی، ابو کی محبوبہ کا ان سے جھگڑا ہو گیا۔ وہ بہت دولت ان سے لوٹ چکی تھی۔ اس کو میرے والد سے زیادہ مالدار آدمی مل گیا تھا۔ اس کے روٹھ کر چلے جانے سے ابو بہت بے چین رہنے لگے۔ کسی پل آرام نہ تھا، بات بات پر غصہ کرتے۔ ان دنوں ابو اتنے چڑچڑے اور حساس ہو گئے تھے کہ ان کو میرا رونا ناگوار گزرتا تھا۔ میں روتی تو امی پر چلاتے اور برسنے لگتے کہ اس کو چپ کراؤ، ورنہ میں اس کا گلا گھونٹ دوں گا۔ ماں کی زندگی میں اب کوئی خوشی نہ رہی، بس وہ مجھے گود میں لے کر اپنے دکھ بھلانے کی کوشش کرتی تھی، اور والد ابھی تک وہ اس بازاری عورت کے دھوکے کو نہ بھلا سکے تھے۔ 4 سال اسی کیفیت میں گزر گئے۔ امی بتاتی تھی کہ ان 4 سالوں میں ایک بار بھی میرے والد نے مجھ کو گود میں نہ اٹھایا، جیسے میں ان کی اولاد ہی نہ تھی۔ اب میں کچھ بڑی ہو گئی تھی، مگر اپنے والد کی شکل سے ڈرتی تھی۔ جب وہ آتے
तो मैं डर कर कहीं छुप जाती। माँ हर वक्त अपने रब के हजूर सजदा रेज होती कि ए खुदा मुझको औलाद नरीना अता कर, ताकि शोहर का दिल मेरी तरफ माइल हो जाए और मैं इसके सामने सरखरू हो जाऊं। खुदा ने अम्मी की दुआ सुन ली, वो उम्मीद से हो गई। मुझे भाई दे दिया, मगर किस्मत ने भाई मिलने की बहुत बड़ी कीमत वसूल की। बेटे को जन्म देते ही मेरी प्यारी अम्मी अल्लाह के पास चली गईं। अब अब्बू का मसला ये था कि किस तरह बेटे को पाले। वो ड्यूटी पर जाते तो हमें मौलवी साहब के घर छोड़ जाते। इनके औलाद ना थी। इनकी बीवी बहुत अच्छी औरत थी, वो एक माँ की तरह हमारा ख्याल रखती। मैं बहुत खुश हो गई कि अल्लाह ने हम पर रहम किया और हमारे लिए एक माँ भेज दी। लेकिन इनकी मोहब्बत की ये चांदनी भी 4 दिन की थी। सौतेली अम्मी का नाम सोबिया था। ये अब्बू के सामने हमसे प्यार से पेश आती, तभी वो समझते थे कि इनकी बीवी हमको बहुत चाहती हैं। रफ्ता रफ्ता हमें इस खातून की मुनाफिकत समझ में आने लगी। 3 साल यूं ही गुजर गए। सोबिया के यहाँ औलाद ना हुई, अब्बू की तो औलाद थी, तभी इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे हालात ने वक्त से पहले समझदार बना दिया। मैं सगी माँ का प्यार नहीं भूली थी। घर का सारा काम मेरे जिम्मे था। कभी वालिद भी बीवी से कह देते कि ये कम सुन है, तुम मेरी बच्ची से इतना ज़्यादा काम ना लिया करो। वो जवाब देती, लड़की ज़ात है, काम का सलीका होगा तो अगले घर खुश रह सकेगी। मैं भाई को संभालती, माँ की खिदमत करती। स्कूल से आने के बाद मैं और भाई घर पर होते, लेकिन हमको स्कूल भेजकर माँ जाने कहाँ चली जाती। घर को ताला लगाकर चाबी मौलवी साहब को दे देती। हिदायत थी कि स्कूल से आओ तो चाबी खाला से ले लेना। रोज का तकरीबा यही मामूल था। अब्बू को इस बात का इल्म ना था। वो खुश थे कि घर आबाद हो गया है और बच्चों की माँ सारा दिन इनके पास ही होती है कि मैंने मैट्रिक पास कर लिया। अब भाई अकेला स्कूल जाता, मैं घर में होती। घर में रहने से पता चला कि अम्मी से मिलने कोई आदमी हमारे घर आता है। माँ ने मुझे कहा, ये मेरा कज़न असहक है। एक दिन असहक आया, माँ घर पर ना थी। वो मुझे घूर घूर कर देखने लगा। इसकी अजीब निगाह से मैं डर गई और बहाना करके मौलवी साहब के घर चली गई। किसी ने मेरे वालिद साहब के कान में ये बात डाल दी कि तुम्हारी लड़की जवान है, घर में तुम्हारी बीवी के रिश्तेदार तुम्हारी गैर मौजूदगी में अब नहीं आने चाहिए। वालिद साहब ने मुझसे पूछा, मैं कैसे छुपाती। मैंने इनको बता दिया कि अम्मी के कज़न असहक आते हैं। अगर झूठ बोलती तो वो मुझ पर भी शक करते, लिहाजा सच ही बता दिया कि असरत से मिलने आते हैं और अक्सर दोपहर का खाना हमारे घर खाते हैं या अम्मी उनके साथ चली जाती हैं। तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? अम्मी ने मना किया हुआ था कि अपने अब्बा को नहीं बताना। वालिद साहब तैश में आ गए। अम्मी से पूछा, सोबिया मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ कौन आता है? मेरा कज़न है, वही आता है, मगर उस नाम का तो तुम्हारा कोई कज़न नहीं है, फिर ये कौन है? वालिद साहब ने पहली बार अम्मी पर हाथ उठाया। खबरदार आइंदा कोई गैर शख्स मेरे घर में कदम ना रखे, वरना मैं तुझको भी मौत के घाट उतार दूंगा और तेरे उस मुंह बोले भाई को भी। अम्मी ने असहक को मना कर दिया कि अब यहाँ मत आना और खुद भी घर से निकलना बंद कर दिया। अब्बा पुलिस में थे। अम्मी सोबिया भी जानती थी कि अब अगर मैंने एहतियात ना की तो शराफत अली मुझे छोड़ेगा नहीं। उन्होंने खुद पर जबर किया और घर से कदम निकालना तर्क कर दिया। मुझको वो अपनी राह का कांटा समझने लगी और मुझे रास्ते से हटाने का एक ही अमल था कि मेरी शादी कर दें। अब वो दिन रात अब्बू के कानों में ये बातें डालने लगी कि बेटी बड़ी हो गई है, अब इसकी शादी की फिक्र करो। अम्मी ने आखिर अपने भतीजे रशीद का रिश्ता अब्बू को बताया। मैं एक सीधी सादी लड़की थी, शादी के तकाजे और इस बंधन की ऊंच नीच को नहीं समझती थी। मैं तो खुश हो गई कि दुल्हन बनूंगी, जेवर कपड़े पहनूंगी और इस जालिम माँ से दूर चली जाऊंगी। अगर दुख था तो सिर्फ इस बात का कि
मेरा छोटा भाई मुझसे दूर हो जाएगा। माँ ने बहुत जल्द रशीद से मेरी शादी करवा दी। वो बहुत खूबसूरत था। मैं तो इसकी सूरत देखकर मर मिटी। इसने भी मुझे पसंद किया, मगर इसके दोस्त अच्छे ना थे। लिहाजा मैंने कसम खा ली कि अगर वो बुराई के रास्ते पर जाता है तो मैं भी अपनी जान देकर इसको अपना बनाऊंगी। हर कुर्बानी देकर सीधे रास्ते पर लाऊंगी। मेरा जज्बा सच्चा था। मेरी कुर्बानियों ने शोहर के दिल पर असर किया और वो भी मुझसे मोहब्बत करने लगे। अब मैं अपने घर में खुश थी, मगर छोटा भाई जफर बहुत याद आता था। मैं के महज अपने भाई से मिलने की खातिर जाती थी। मेरी शादी के बाद वो बहुत उदास हो गया था और काफी कमजोर हो गया था। जाहिर है कि मैं ही अपने भाई का ख्याल रखा करती थी। माँ ना तो इसे खाना वक्त कर देती थी और ना कपड़े। वो मैला कुचैला और उदास रहने लगा था। जब मैं जाती, भाई मुझको देखकर आंसू बहाने लगता। एक दो बार मैंने सोबिया से कहा, अम्मी जफर का ख्याल रखा करो। वो गुस्से से बोली, तुम इस घर की फिक्र ना करो, अब तुम्हारा इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं जानू मेरा काम जाने। माँ ने जाने क्या सोचकर एक शराबी से मेरी शादी की थी। रशीद बुरे दोस्तों में जरूर फंसा हुआ था, मगर वो इतना बुरा इंसान ना था। रफ्ता रफ्ता मैंने इसको बुरे मशागिल से हटा दिया। रशीद ने अब सारी तवज्जो अपने कारोबार पर मजबूर कर दी। हमारे घर में दौलत की कमी ना रही। उनका कहना था कि ये सब हमारी वजह से हुआ है, वरना मैं तो कंगाल हो जाता। लगता है इस दुनिया में तुमसे बढ़कर और कोई औरत अच्छी नहीं है। मैं इनकी ये बातें सुनती तो अपनी किस्मत पर रश करती। एक दिन रशीद ने मुझे मैके छोड़ा और कहा कि वापसी पर अपने वालिद के साथ आ जाना, मुझे ज़रूरी काम है, शायद देर हो जाए। इस दिन शाम तक अबू ना आए तो मुझे घर जाने की फिक्र हुई। अपने शोहर के कहे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। घर जाने की फिक्र में मुबतला शाम को मैं मौलवी साहब के घर गई और उनको कहा, मुझे घर जाना है और अब्बू आज दौरे पर चले गए हैं, आप किसी तरह मुझे घर पहुंचा दीजिए। मौलवी साहब हमारे लिए वालिद की तरह थे। उन्होंने कहा, बेटी फिक्र ना करो, मैं किसी तरह तुमको घर भिजवा देता हूँ। वो खुद गाड़ी नहीं चला सकते थे। बेटे से कहा, मुजाहिद तुम जफर को हमरा ले लो और बहन को उनके घर पहुंचाओ। मुजाहिद और हम बचपन में साथ खेलते थे और बहन भाइयों की तरह थे। मैंने जफर को साथ लिया और ये दोनों मुझको मेरे घर पर उतार कर वापस चले गए। बस इतनी सी बात थी जिसका माँ ने दंगल बना दिया। उन्होंने अगले दिन रशीद को बुलाया और कहा कि तुम्हारी बीवी मोहल्ले के जिस लड़के के साथ आई थी, क्या तुमने इससे पूछा कि वो कौन था और इससे इनका क्या रिश्ता था? इसके अलावा भी जाने क्या क्या कहा। वो गुस्से में आग बगोला होकर आया और आते ही मुझ पर बरसने लगे। वो तमाम रात क़यामत की गुजर गई। मैं रोती रही और वो मुझको बुरा भला कहता रहा। आखिर आधी रात को घर से निकल गया। कहा कि सुबह जब मैं आऊं तो तुम घर में ना मिलो, वरना मैं तेरा खून कर दूंगा। अपने बाप के घर चली जाना। मैं बाद में आकर तेरा फैसला तेरे बाप के सामने करूंगा। मैं रशीद का गुस्सा जानती थी, लिहाजा मैंने सुबह ही अब्बू को फ़ोन किया कि आप मुझे आकर ले जाइए। मेरी तबीयत ठीक नहीं है और रशीद भी घर पर नहीं है, लेकिन उनको ज़रूरी काम था। उन्होंने अच्छा कहकर फ़ोन रख दिया और मौलवी साहब के पास गए। उनसे कहा, नादरा की तबीयत ठीक नहीं, आप इसको ले आइए। मौलवी साहब बेचारे सीधे साधे और नेक फितरत इंसान थे। उन्होंने मुजाहिद को कहा कि बेटा तुम जफर के साथ जाकर नादरा बहन को ले आओ। यूं मुजाहिद और जफर हालात से बेखबर मेरे घर आ गए। जो ही वो अंदर आए, रशीद भी उसी वक्त घर में दाखिल हुए। उन्होंने जो मुझको मुजाहिद से बात करते देखा, कुछ सोचा और ना कुछ समझा, पिस्तौल तान लिया और गोली चला दी। जफर ने जो ये देखा, वो मुजाहिद को बचाने को आगे बढ़ा, अभी उसको गोली लग गई। यूं मेरे प्यारे भाई ने मेरे सामने तड़प कर जान दे दी। भाई की मौत का मंजर बहुत ही भयानक था। वो मंजर आज भी मेरी आंखों के गोशे नम कर देता है।
रशीद को वालिद साहब ने गिरफ्तार करवा दिया। केस चला। अब्बा जान ने अपने इकलौते बेटे के कातिल को फांसी पर पहुंचा कर दम लिया। वक्त अभी पिछले घाव से ना भर पाया था कि तकदीर ने एक और सितम ढाया। वालिद साहब डाकुओं से मुकाबले में मारे गए। सोबिया की मुराद भर आई। वो तमाम जेवर रुपया पैसा समेट कर अपने उसी खैरख्वाह के पास चली गई। बाद में इसने इसी शख्स से शादी कर ली। मैं बाप के घर में आंसू बहाने को तन्हा रह गई। यही एक घर मेरा सच्चा दोस्त बना, जो मेरा साइबान था और मेरे वालिद के नाम था। वक्त ने मेरे साथ जो मजाक किया, इसका शिकवा किससे करती। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे। जज़ाकल्लाह।